लैमेंटेशन 3 1 चैप्टर 2 चैप्टर हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करो, हमारे इस वचन पढ़ने की सेवा में हमारे ज्ञान बुद्धि समझ में प्रवेश कीजिए और हमें सिखाइए। इन वचनों के रहस्य आपके बिना कोई नहीं सिखा सकता है। हमारी मदद करो पवित्र आत्मा, नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। Chapter 1 Jerusalem's misery for her sins. She bemoans her afflictions and confesses her sins. First verse से पढ़ेंगे. How dwelt the city sit solitary that was full of people? How is she become as a widow, she that was great among the nations and princess among the provinces? How will she become tributary? She weepeth sore in the night, and her tears are on her cheeks. Among all her lovers she hath none to comfort her. All her friends have dealt treacherously with her. They are become her enemies. Judah is gone into captivity because of affliction and because of great servitude. She dwelleth among the heathen. She findeth no rest. All her persecutors overtook her between the strides. The ways of Zion do mourn because none come to the solemn feasts. All her gates are desolate, her priests sigh, her virgins are afflicted, and she is in bitterness. Her adversaries are the chief, her enemies prosper, for the Lord hath afflicted her for the multitude of her transgressions. Her children are gone into captivity before the enemy, and from the daughter of Zion all her beauty is departed. Her princes are become like harts that find no pasture, and they are gone without strength before the pursuer. Jerusalem remembered in the days of her affliction and of her miseries all her pleasant things that she had in the days of old, when her people fell into the hand of the enemy, and none did help her. The adversaries saw her and did mock at her Sabbaths. Jerusalem hath grievously sinned, therefore she is removed. All that honored her despise her, because they have seen her nakedness. Yea, she sigheth and turneth backward. Her filthiness is in her skirts. She remembereth not her last end. Therefore she come down wonderfully. She had no comforter. O Lord, behold my affliction, for the enemy hath magnified himself. The adversary hath spread out his hand upon all her pleasant things. For she hath seen that the heathen entered into her sanctuary, whom thou didst command that they should not. That they should not enter into thy congregation. All her people sigh. They seek bread. They have given their pleasant things for meat to relieve the soul. See, O Lord, and consider, for I am become vile. Is it nothing to you, all ye that pass by? Behold and see if there be any sorrow like unto my sorrow, which is done unto me, wherewith the Lord hath afflicted me in the day of his fierce anger. From above hath he sent fire into my bones, and it prevaileth against them.
He hath spread a net for my feet. He hath turned me back. He hath made me desolate and faint all the day. The yoke of my transgressions is bound by his hand. They are wreathed and come up upon my neck. He hath made my strength to fall. The Lord hath delivered me into their hands, from whom I am not able to rise up. The Lord hath trodden under foot all my mighty men in the midst of me. He hath called an assembly against me to crush my young men. The Lord hath trodden a virgin, the daughter of Judah, as in a winepress. For these things I weep, mine eye runneth down with water, because the Comforter that should relieve my soul is far from me. My children are desolate because the enemy prevailed. Zion spreadeth forth her hands, and there is none to comfort her. The Lord hath commanded concerning Jacob that his adversaries should be round about him. Jerusalem is as a menstruous woman among them. The Lord is righteous, for I have rebelled against his commandment. Hear, I pray you, all people, and behold my sorrow. My virgins and my young men are gone into captivity. I called for my lovers, but they deceived me. My priests and mine elders gave up the ghost in the city, while they sought their mate to relieve their souls. Behold, O Lord, for I am in distress, my bowels are troubled, mine heart is turned within me, for I have grievously rebelled. Abroad the sword bereaveth, at home there is as death. They have heard that I sigh, there is none to comfort me. All mine enemies have heard of my trouble. They are glad that thou hast done it. Thou wilt bring the day that thou hast called, and they shall be like unto me. Let all their wickedness come before thee, and do unto them as thou hast done unto me, for all my transgressions, for my sighs are many, and my heart is faint. Chapter 2. Jeremiah laments Jerusalem's misery. Jerusalem's misery. He complains thereof to God. First verse. How hath the Lord covered the daughter of Zion with a cloud in his anger, and cast down from heaven unto the earth the beauty of Israel? He and remembered not his footstool in the day of his anger. The Lord hath swallowed up all the habitations of Jacob, and hath not pitied. He hath thrown down in his wrath the strongholds of the daughter of Judah. He hath brought them down to the ground. He hath polluted the kingdom and the princes thereof. He hath cut off in his fierce anger all the horn of Israel. He hath drawn back his right hand from before the enemy, and he burned against Jacob like a flaming fire, which devoureth round about. He hath bent his bow like an enemy. He stood with his right hand as an adversary, and slew all that were pleasant to the eye in the tabernacle of the daughter of Zion. He poured out his fury like fire. The Lord was as an enemy. He hath swallowed up Israel. He hath swallowed up all her palaces. He hath destroyed his strongholds, and hath increased in the daughter of Judah mourning and lamentation. And he hath violently taken away his tabernacle, as if it were of a garden.
He had destroyed his places of the assembly. The Lord had caused the solemn feasts and Sabbaths to be forgotten in Zion, and had despised in the indignation of his anger the king and the priest. The Lord hath cast off his altar, he hath abhorred his sanctuary, he hath given up into the hand of the enemy the walls of her palaces. They have made a noise in the house of the Lord, as in the day of a solemn feast. The Lord hath purposed to destroy the wall of the daughter of Zion. He hath stretched out a line. He hath not withdrawn his hand from destroying thereof. Therefore he made the rampart and the wall to lament. They languished together. Her gates are sunk into the ground. He hath destroyed and broken her bars. Her king and her princes are among the Gentiles. The law is no more. Her prophets also find no vision from the Lord. The elders of the daughter of Zion sit upon the ground and keep silence. They have cast up dust upon their heads. They have girded themselves with sackcloth. The virgins of Jerusalem hang down their heads to the ground. Mine eyes do fill with tears. My bowels are troubled. My liver is poured upon the earth for the destruction of the daughter of my people, because the children and the sucklings swoon in the streets of the city. They say to their mothers, where is corn and wine? When they swooned as the wounded in the streets of the city, when their soul was poured out into their mother's bosom. What thing shall I take to witness for thee? What thing shall I liken to thee, O daughter of Jerusalem? What shall I equal to thee, that I may comfort thee, O virgin daughter of Zion? For thy breach is great like the sea. Who can heal thee? Thy prophets have seen vain and foolish things for thee, and they have not discovered thine iniquity to turn away thy captivity, but have seen for thee false burdens and causes of banishment. All that pass by clap their hands at thee. They hiss and wag their head at the daughter of Jerusalem, saying, is this the city that men call the perfection of beauty, the joy of the whole earth? All thine enemies have opened their mouth against thee. They hiss and gnash the teeth. They say, we have swallowed up her up. Certainly, this is the day that we look for. We have found, we have seen it. The Lord had done that which he had devised. He hath fulfilled his word that he had commanded in the days of old. He hath thrown down and hath not pitied, and he hath caused thine enemy to rejoice over thee. He hath set up the horn of thine adversaries. Their heart cried unto the Lord, O wall of the daughter of Zion, let tears run down like a river day and night, and river day and night. Give thyself no rest. Let not the apple of thine eye cease. Arise, cry out in the cry out in the night, in the beginning of the watches. Pour out thine heart like water before the face of the Lord. Lift up thy hands toward him for the life of thy young children that faint for hunger in the top of every street. Behold, O Lord, and consider to whom thou hast done this. Shall the woman eat their fruit, and children of a span long? Shall the priest and the prophet be slain in the sanctuary of the Lord, the young and the old?
lie on the ground in the streets. My virgins and my young men are fallen by the sword. Thou hast slain them in the day of thine anger. Thou hast killed and not pitied. Thou hast called as in a solemn day my terrors round about, so that in the day of the Lord's anger none escaped, nor remained. Those that I have swaddled and brought up hath mine enemy consumed. Thank you, Jesus. हम इन्हीं वचनों को हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। विलाप गीत 1 अध्याय 2 अध्याय हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। यरूशलेम के दुख पहले अध्याय से पहले वचन से। जो नगरी लोगों से भरपूर थी वह अब कैसी अकेली बैठी हुई है। वह क्यों एक विधवा के समान बन गई। वह जो जातियों की दृष्टि में महान और प्रांतों में रानी थी अब क्यों कर देने वाली हो गई है। रात को वह फुट फुट कर रोती है। उसके आंसू गालों पर ढलकते हैं। उसके सब यारों में से अब कोई उसे शांति नहीं देता। उसके सब मित्रों ने उससे विश्वासघात किया और उसके शत्रु बन गए हैं। यहूदा दुख और कठिन दासत्व से बचने के लिए परदेश चली गई, परंतु अन्य जातियों में रहती हुई वह चैन नहीं पाती। उसके सब खदेड़ने वालों ने उसकी सकेती में उसे पकड़ लिया है। सियोन के मार्ग विलाप कर रहे हैं, क्योंकि नियत पर्वों में कोई नहीं आता है। उसके सब फाटक सुनसान पड़े हैं। उसके याजक कराहते हैं। उसकी कुमारियाँ शोकित हैं और वह आप कठिन दुख भोग रही है। उसके द्रोही प्रधान हो गए। उसके शत्रु उन्नति कर रहे हैं, क्योंकि यहोवा ने उसके बहुत से अपराधों के कारण उसे दुख दिया है। उसके बाल बच्चों को शत्रु हाँक हाँक कर बंधुआई में ले गए। सियोन की पुत्री का सारा प्रताप जाता रहा है। उसके हकीम ऐसी हरिणों के समान हो गए हैं जिन्हें कोई चरागाह नहीं मिलती। वे खदेड़ने वालों के सामने से बलहीन होकर भागते हैं। यरूशलेम ने इन दुख भरे और संकट के दिनों में, जब उसके लोग द्रोहियों के हाथ में पड़े और उसका कोई सहायक न रहा, तब अपनी मन भावनी वस्तुओं को जो प्राचीन काल से उसकी थी स्मरण किया है। उसके द्रोहियों ने उसको उजड़ा देखकर ठट्ठा में उड़ाया है, ठट्ठों में उड़ाया है। यरूशलेम ने बड़ा पाप किया, इसलिए वह अशुद्ध स्त्री सी हो गई है। जितने उसका आदर करते थे वे उसका निरादर करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी नंगाई देखी है। हाँ, वह कराहती हुई मोह फेर लेती है। उसकी अशुद्धता उसके वस्त्र पर है। उसने अपने अंत का स्मरण न रखा, इसलिए वह भयंकर रीति से गिराई गई और कोई उसे शांति नहीं देता है। हे यहोवा, मेरे दुख पर दृष्टि कर, क्योंकि शत्रु मेरे विरुद्ध सफल हुआ है। द्रोहियों ने उसकी सब मन भावनी वस्तुओं पर हाथ बढ़ाया है। हाँ, अन्य जातियों को जिनके विषय में तूने आज्ञा दी थी कि वे तेरी सभा में भागी न होने पाएगी, उनको उसने तेरे पवित्र स्थान में घुसा हुआ देखा है। उसके सब निवासी कराहते हुए भोजन वस्तु ढूंढ रहे हैं। उन्होंने अपना प्राण बचाने के लिए अपनी मनभावनी वस्तुएं बेचकर भोजन मोल लिया है। हे यहोवा, दृष्टि कर और ध्यान से देख, क्योंकि मैं तुच्छ हो गई हूँ। हे सब बटोहियों, क्या तुम्हें इस बात की कुछ भी चिंता नहीं? दृष्टि करके देखो, क्या मेरे दुख से बढ़कर कोई और पीड़ा है जो यहोवा ने अपने क्रोध के दिन मुझ पर डाल दी है? उसने ऊपर से मेरी हड्डियों में आग लगाई है और वे उससे भस्म हो गई। उसने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया और मुझको उल्टा लौटा दिया है। उसने ऐसा किया कि मैं त्यागी हुई सी और रोग से लगातार निर्बल रहती हूँ।
उसने जुए के रस्सियों के समान मेरे अपराधों को अपने हाथ से कसा है। उसने उन्हें बटकर मेरी गर्दन पर चढ़ाया और मेरा बल घटा दिया है, जिनका मैं सामना भी नहीं कर सकती। उन्हीं के वश में यहोवा ने मुझे कर दिया है। यहोवा ने मेरे सब पराक्रमी पुरुषों को तुच्छ जाना। उसने नियत पर्व का प्रचार करके लोगों को मेरे विरुद्ध बुलाया कि मेरे जवानों को पीस डाले। यहूदा की कुमारी कन्या को यहोवा ने मानो कोलहू में पेरा है। इन बातों के कारण मैं रोती हुई, मेरी आंखों से आंसू की धारा बहती रहती है, क्योंकि जिस शांति दाता के कारण मेरा जी हरा भरा हो जाता था, वह मुझसे दूर हो गया। मेरे बच्चे अकेले हो गए, क्योंकि शत्रु प्रबल हुआ है। सियोन हाथ फैलाए हुए है, उसे कोई शांति नहीं देता। यहोवा ने याकूब के विषय में यह आज्ञा दी है कि उसके चारों ओर के निवासी उसके द्रोही हो जाए। यरूशलेम उनके बीच अशुद्ध स्त्री के समान हो गई है। यहोवा सच्चाई पर है, क्योंकि मैंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। हे सब लोगों, सुनो और मेरी पीड़ा को देखो। मेरे कुमार और कुमारियाँ बंधुआई में चली गई है। मैंने अपने मित्रों को पुकारा, परंतु उन्होंने भी मुझे धोखा दिया। जब मेरे याजक और पुरनिये इसलिए भोजन वस्तु ढूंढ रहे थे कि खाने से उनका जी हरा हो जाए, तब नगर ही में उनके प्राण छूट गए। हे यहोवा, दृष्टि कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी अंतड़ियाँ ऐंठी जाती है, मेरा हृदय उलट गया है, क्योंकि मैंने बहुत बलवा किया है। बाहर तो मैं तलवार से निर्वंश होती हूँ और घर में मृत्यु विराज रही है। उन्होंने सुना है कि मैं कराहती हूँ, परंतु कोई मुझे शांति नहीं देता। मेरे सब शत्रुओं ने मेरी विपत्ति का समाचार सुना है। वे इससे हर्षित हो गए कि तू ही ने यह किया है, परंतु जिस दिन की चर्चा तूने प्रचार करके सुनाई है, उसको तो दिखा, तब वे भी मेरे समान हो जाएंगे। उनकी सारी दुष्टता की ओर दृष्टि कर, और जैसा मेरे सारे अपराधों के कारण तूने मुझे दंड दिया, वैसा ही उनको भी दंड दे, क्योंकि मैं बहुत ही कराहती हूँ और मेरा हृदय रोग से निर्बल हो गया है। यरूशलेम को परमेश्वर का दंड। 2 अध्याय पहले वचन से। यहोवा ने सियोन की पुत्री को किस प्रकार अपने कोप के बादलों से ढांप दिया है। उसने इस्राएल की शोभा को आकाश से धरती पर पटक दिया और कोप के दिन अपने पावों की चौकी को स्मरण नहीं किया। यहोवा ने याकूब की सब बस्तियों को निष्ठुरता में नष्ट किया है। उसने रोष में आकर यहूदा की पुत्री के दृढ़ गढ़ों को ढाकर मिट्टी में मिला दिया है। उसने हाकिमों समेत राज्य को अपवित्र ठहराया है। उसने क्रोध में आकर इस्राएल के सींग को जड़ से काट डाला है। उसने शत्रु के सामने उनकी सहायता करने से अपना दाहिना हाथ खींच लिया है। उसने चारों ओर भस्म करती हुई लौ के समान याकूब को जला दिया है। उसने शत्रु बनकर धनुष्य चढ़ाया और बैरी बनकर दाहिना हाथ बढ़ाए हुए खड़ा है, और जितने देखने में मनभावने थे उन सबको उसने घात किया। सियोन की पुत्री के तंबू पर उसने आग के समान अपनी जलजलाहट भड़का दी है। यहोवा शत्रु बन गया, उसने इस्राएल को निगल लिया। उसके सारे भवनों को उसने मिटा दिया और उसके दृढ़ गढ़ों को नष्ट कर डाला है, और यहूदा की पुत्री का रोना पीटना बहुत बढ़ाया है। उसने अपना मंडप बारी के मचान के सामने अचानक गिरा दिया। अपने मिलाप स्थान का उसने नाश किया है। यहोवा ने सियोन में नियत पर्व और विश्राम दिन
दोनों को भुला दिया है और अपने भड़के हुए कोप से राजा और याजक दोनों का तिरस्कार किया है। यहोवा ने अपने वेदी मन से उतार दी और अपना पवित्र स्थान अपमान के साथ तज दिया है। उसके भवनों की दीवारों को उसने शत्रुओं के वश में कर दिया। यहोवा के भवन में उन्होंने ऐसा कोलाहल मचाया कि मानो नियत पर्व का दिन हो। यहोवा ने सिय्योन की कुमारी के शहरपनाह तोड़ डालने की ठान ली थी। उसने डोरी डाली और अपना हाथ उसे नष्ट करने से नहीं खींचा। उसने किले और शहरपनाह दोनों से विलाप करवाया। वे दोनों एक साथ गिराए गए हैं। उसके फाटक भूमि में धंस गए हैं। उनके बेड़ों को उसने तोड़कर नष्ट किया। उसके राजा और हकीम अन्य जातियों में रहने के कारण व्यवस्था रहित हो गए हैं और उसका भविष्यद्वक्ता यहोवा से दर्शन नहीं पाते हैं। सिय्योन की पुत्री के पुरनिये भूमि पर चुपचाप बैठे हैं। उन्होंने अपने सिर पर धूल उड़ाई और टाट का फेंटा बांधा है। यरूशलेम की कुमारियों ने अपना अपना सिर भूमि तक झुकाया है। मेरी आंखें आंसू बहाते बहाते धुंधली पड़ गई है। मेरी आंतड़ियाँ ऐंठी जाती है। मेरे लोगों की पुत्री के विनाश के कारण मेरा कलेजा फट गया है, क्योंकि बच्चे वरन दूध पीते बच्चे भी नगर के चौकों में मूर्छित होते हैं। वे अपनी अपनी माता से रोकर कहते हैं, अन्न और दाख मधु कहाँ है? वे नगर के चौकों में घायल किए हुए मनुष्य के समान मूर्छित होकर अपने प्राण अपनी अपनी माता की गोद में छोड़ते हैं। हे यरूशलेम की पुत्री, मैं तुझसे क्या कहूँ? मैं तेरी उपमा किससे दूँ? हे सिय्योन की कुमारी कन्या, मैं कौन सी वस्तु तेरे समान ठहरा कर तुझे शांति दूँ? क्योंकि तेरा दुख समुद्र सा अपार है। तुझे कौन चंगा कर सकता है? तेरे भविष्यद्वक्ताओं ने दर्शन का दावा करके तुझसे व्यर्थ और मूर्खता की बातें कही है। उन्होंने तेरा अधर्म प्रकट नहीं किया, नहीं तो तेरी बंधुआई न होने पाती, परंतु उन्होंने तुझे व्यर्थ के और झूठे वचन बताए, जो तेरे लिए देश से निकाल दिए जाने का कारण हुए। सब बटोही तुझ पर ताली बजाते हैं। वे यरूशलेम की पुत्री पर यह कहकर ताली बजाते और सिर हिलाते हैं, क्या यह वही नगरी है जिसे परम सुंदरी और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण कहते थे? तेरे सब शत्रुओं ने तुझ पर मुंह पसारा है। वे ताली बजाते और दांत पीसते हैं। वे कहते हैं, हम उसे निगल गए हैं। जिस दिन की बाट हम जोहते थे वह यही है, वह हमको मिल गया, हम उसको देख चुके हैं। यहोवा ने जो कुछ ठान लिया था वही किया भी है। जो वचन वह प्राचीन काल से कहता आया है वही उसने पूरा भी किया है। उसने निष्ठुरता से तुझे ढा दिया है। उसने शत्रुओं को तुझ पर आनंदित किया और तेरे द्रोहियों के सींग को ऊंचा किया है। वे प्रभु की ओर तन मन से पुकारते हैं। हे सिय्योन की कुमारी की शहरपनाह, अपने आंसू रात दिन नदी के समान बहाती रहे। तनिक भी विश्राम न ले, न तेरी आंख की पुतली चैन ले। रात के हर प्रहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर। प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान उंडेल। तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैला। हे यहोवा, दृष्टि कर और ध्यान से देख कि तूने यह सब दुख किसको दिया है। क्या स्त्रियां अपना फल अर्थात अपने गोद के बच्चों को खा डाले? हे प्रभु, क्या याजक और भविष्यद्वक्ता तेरे पवित्र स्थान में घात किए जाए? सड़कों में लड़के और बूढ़े दोनों भूमि पर पड़े हैं। मेरी कुमारियां और जवान लोग तलवार से गिर गए हैं। तूने कोप करने के दिन उन्हें घात किया। तूने निष्ठुरता के साथ उनका वध किया है। तूने मेरे भय के कारणों को नियत पर्व की भीड़ के समान चारों ओर से बुलाया है।
और यहोवा के कोप के दिन न तो कोई भाग निकला और न कोई बचा रहा है। जिनको मैंने गोद में लिया और पाल पोस कर बढ़ाया था, मेरे शत्रु ने उनका अंत कर डाला है। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा निश्चित है, पवित्र आत्मा कि जब मांग लिए है आपको कि इन वचनों के भेद रहस्य आपके बिना कोई सिखा नहीं सकता है, तो आपने हमको सुन लिया है। और निश्चित है खुदा कि ये वचन हमारे अंदर सिर्फ खनखनाने वाले, आवाज़ करने वाले नहीं रहेंगे, ये जीवित होकर हमारे ज्ञान बुद्धि समझ में इसका भरपूर आनंद हम में तू उंडेलेगा। हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट। हमारे सारे काम तूने तेरी आराधना के जितने भी हमारे अंदर जो भी करने का मन था सब कुछ पूरा करके दे रहा है। तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद मेरे पवित्र आत्मा। और इस समय पवित्र आत्मा आपके हाथों में, आपके ईश्वरीय रचना में ढलने के लिए, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में होने के लिए, फिट एंड फिक्स होने के लिए समर्पित हो जाते हैं। नासरी यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, जॉन 11 चैप्टर 1 वर्स से 13 वर्स, 1 क्रॉनिकल्स 9 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 1 वचन से 13 वचन, पहले इतिहास की पुस्तक 9 अध्याय। हम अकेले में बैठकर व्यक्तिगत समय में इन वचनों को, इन अध्यायों को पढ़ना है, ताकि व्यक्तिगत रूप में पवित्र आत्मा हमको विशेष करके जो हमारे अंदर होने की ज़रूरत है उस विषय में वो कुछ हमारे जीवन को फिट एंड फिक्स कर सके, और हमारी अपनी इकलौती पर्सनालिटी जो परमेश्वर चाहता है उसमें हमें रचना करके ढल कर लेकर आ सके ईश्वरीयता में। हालेलुया। जिसके बाद परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने के लिए उठा लेगा, और ऐसा होने के लिए पवित्र आत्मा हम में निवास कर रहा है। निश्चित परमेश्वर के अनुग्रह के, सच्चाई के आत्मा का हमने लाभ उठाना है इस बात को पूरा होने के लिए। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कर इन वचनों के आधार से हमें ईश्वरीयता के रचना में, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू आबा फादर। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू लॉर्ड।